Yeah. Say? Okay. So, good afternoon and welcome everyone to Open Canvas Kala Ke Kisse with Cutting Chai. So, I would like to begin with introducing our guest speaker today, Dhimant Vyas ji. So, Dhimant Vyas ji is an acclaimed animation film designer. He has been collaborating with international studios, film design, then gaming design, along with that, the Bollywood, edtech industry, and a lot more. He has been awarded internationally for his excellence in animation. Dhimanji has contributed his talent in many of famous projects like Shaun the Sheep 2, Purple and Brown. Along with that, a very critically acclaimed film, Tare Zameen Par. It's a really immense pleasure to have you here with us today, sir. Thank you. Thank you. And further, I would like to introduce our visual communication designer, Kanchan Dhankani. She has conceptualized this entire exhibition and the installation. She is the founder and principal designer of Kanchais. She has designed packaging for many famous FMCG brands like Tata, Henko, Mago, and a lot more. I would like her to take the conversation further with Dhimanji. Welcome, Dhimant. So thank you very much for coming here. Thank you very much for coming here, and yes, thank you and welcome everyone. So as we already have set a background of the show being on the magic, or say the subconscious mind probing something to us, and that's how the creativity happens. So that's the topic for today. And we'll start with Dhimanji telling us a little about his exciting piece of works, what excites you more, and yeah, let's start with that. Yeah, mainly what her topic is subconscious mind. So that always like it's a part of the any creative process. So वो I think सबके लिए होता है and everybody experience that and कितना यूज होता है वो depends on the people and creative minds कि how much you use your subconscious mind. And so what I know about subconscious mind and conscious mind is that whatever is in our control, that is like conscious mind, and subconscious is like which is already doing his work, like the way we breathe or the control our body and जो भी चीज हो रहा है वो अपने आप हो रहा है लाइक यू डोंट हैव कंट्रोल बट इट हैपन्स एंड इट्स वेरी स्ट्रांग माइंड सबकॉन्शियस वो एक्सप्लोर बहुत कम लोग में बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड creative people they explore more. So as like she was telling earlier, like we use only 2% or 3% of subconscious mind और वो यूज नहीं करते. तो आई थिंक ये जो कांचन का काम है that speaks about and main thing is the process, like the way you think. I think process के बारे में आपने देखा होगा, वीडियोस में सुना होगा और Yeah. So have you experienced that the conscious mind says something and the subconscious mind is saying something completely opposite, and there's a clash between the two while creating something? Yes, that is always there. Okay. So mainly like it's a logical mind ना, just conscious mind है, logical है. So वो हमेशा आप कुछ रूल्स को ब्रेक करना है, या तो that is like आपका जो राइट ब्रेन है और लेफ्ट ब्रेन है जो कॉन्शियस माइंड या जो रूल्स को मानता है, राइट ब्रेन जो अनकॉन्शियसली जो सोचता है या तो आता है जो रूल्स ब्रेक करने का जो क्रिएटिव माइंड है एक्चुअली. सो वो आई थिंक आप इफ यू आर अवेयर देन यू शिफ्ट योर थॉट प्रोसेस. तो हमेशा वो लॉजिक बोलता है कि ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर आप क्रिएटिव है तो यू ब्रेक द रूल एंड ट्राई टू डू समथिंग क्रिएटिव एंड which comes automatically. और उसमें कॉम्बिनेशंस होता है. जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आपका लाइफ टाइम से पूरा एक्सपीरियंस उसमें लाइक स्टैक किया हुआ है, एक एक मोमेंट आपका अंदर पड़ा है वो सबकॉन्शियस माइंड में, and it's like a book, so
इट फ्लिप्स एंड जब आप क्रिएटिवली जब सोच रहे तो कहीं कहीं से इमेजेस आपने कहीं पे भी दिखा है, या तो पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विजुअल फॉर्म में अपियर होता है। एंड दैट आई थिंक इंटरेस्टिंग ये है। मैं स्पेशली एक्सरसाइज करता हूँ जो कुछ नया सोचना है या तो कुछ क्रिएटिव चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आता है, कुछ प्रोजेक्ट्स आता है, तो आ, आ, रात को सोने के पहले या तो पीसफुली जब बैठ रहे एंड कुछ थॉट्स क्रिएट करके छोड़ देता हूँ। जैसे सोने के पहले इफ यू थिंक ऑफ एनी प्रोजेक्ट एंड जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड यू फाइंड सम आंसर इन मॉर्निंग, या ये वो चल रहा है, या हाँ, वो अंदर वो अपना काम लाइक उसको काम दे देना है सबकॉन्शियस कि दिमाग ये को, वो असली अपने आप time को homework सॉल्व है। करके दे देता है। Okay. सो दैट ऑलवेज हैपेंस एंड वो टाइम पे आपको सही क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं। यस यस, ऐसे स्टडीज में बोला जाता है दैट जब नहाते हैं तभी पानी it comes from your head to, you know, all the sensories are working and active at that time, so many people get ideas by having bath, Yeah. so वो भी है। तभी दूसरे दूसरे ख्याल आते हैं, लिंक्स हो जाते हैं, and you know you get the toughest answers there. So that's how complex mind is. Yeah. Best thing is Yeah. nature. जब आप नेचर के साथ है, हाँ, that time you get like you वो कनेक्ट होता है। right right. So आपके क्या फंडेज है, मतलब how in your process, अभी एक ब्रीफ आया आपको तो फिर how do you start going about decoding it? या जैसे स्क्रिबल्स जो आपने भी यहाँ पे आप भी वही चीज बोल रहे हैं, जो स्क्रिबल्स करना है, लाइक आप सीधा वो प्रोजेक्ट के बारे में नहीं करना है, बट यू जस्ट स्क्रिबल अबाउट लाइक वट एवर कम्स टू योर माइंड। जैसे वो इमेजेस अगर मैं दिखाऊंगा तो Yeah. उसमें जस्ट स्क्रिबल्स करता हूँ, या तो जो इमेजेस दिमाग में आता है तो वो सब ये तारे जमीन पर का शूटिंग Oh, this is that. shooting, Yes yeah, yes घर में। yes. Okay. बट जैसे ये प्रोजेक्ट हाँ. पेंटिंग है तो वो बहुत अर्ली स्क्रिबल्स है एंड जो रियलिटी से कितना मैं मतलब रूल्स ब्रेक करना बेसिकली कि Right. कैसे नया सोच सकता हूँ। और मेरा कुछ जो अंदर से लगाव है, जैसे नेचर के बारे में लगाव है, फोक आर्ट के बारे में लगाव है, या तो वो कॉम्बिनेशंस हो जाता है। और इससे एक स्टाइल भी बन रही है। हाँ, There's a slowly very yeah, वो particular style. या स्लोली ना वो एक स्टाइल फॉर्म होता गया, उसके लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं गया था। Right. बट आई जो भी एंजॉय कर रहा था, दैट बिकम लाइक अ स्लोली। ऑफ कोर्स लाइक पीपल गिव सजेशंस एंड आइडियाज सब आता है, And a lot of if it you is see storyboarding. those- Yeah. There's जो भी दिमाग में आता है वो Right. फ्रीली। पेंटिंग में तो ज्यादा फ्रीडम है बिकॉज यू डोंट हैव एनी ब्रीफ और एनीथिंग फ्रॉम क्लाइंट, सो यू हैव टोटल फ्रीडम, सो डू व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड एंड व्हाटएवर यू लव टू डू, एंड देन वो होता रहता है। तो ये प्रैक्टिस के लिए, आई मीन ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी एन आइडिया बैंक, तो ये मतलब आप हाउ डू यू डू दिस लाइक? या मेरे पास बहुत सारा स्केच बुक्स है पुराना टाइम से, अभी भी मैं प्रिजर्व करके रखता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से आइडिया क्लिक होता है। Okay. कहीं मैंने ऐसे ही डूडल किया है या स्क्रिबल है तो वो कोई प्रोजेक्ट में काम में आ जाता है। जैसे तारे जमीन पर का आपने ड्रीम सीक्वेंस देखा होगा, टाइटल एनिमेशन का, उसमें स्ट्रेंज सब क्रीचर्स क्ले में जो एनिमेट होता रहता है, और वो सब मेरा बुक्स जो डूडल बुक से निकला। क्योंकि जब प्रोजेक्ट आया देन आई अगेन वेंट टू माय ओल्ड स्केच बुक, वो सब देखा कि क्या क्या, एंड उसमें से कुछ पिक किया एंड एक स्टोरी लिंक किया। एंड सिंस इट वाज ड्रीम सीक्वेंस दैट वाज इजी बिकॉज वो विजुअल्स जब ड्रीम देख रहे तो विजुअल का कनेक्शंस नहीं है, लाइक एक विजुअल से आप दूसरे विजुअल में स्मूथली चले जाते हैं ड्रीम में, एंड इट्स अ वियर्ड
ड्रीम होता है आपका, हाँ, तो ज्यादा सेंस नहीं Yeah, रहता, so, बहुत लॉजिक नहीं रहता. यस. हाँ, सो पहले से क्लियर है कि रूल मुझे, आई कैन ब्रेक द रूल और आई कैन इंट्रोड्यूस एनी स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, राइट. any nature का element, and only thing was clear that I don't have to use more human, ओके. जो human या तो टेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट या अच्छा. गैजेट्स, गैजेट्स. या मोर नेचुरल, बिकॉज कैरेक्टर को नेचर ज्यादा पसंद है. ओके. ओके. कमिंग फ्रॉम दैट माइंड. या सो वो एंगल से, लेकिन डूडल्स या मेरा पुराना जो स्केच बुक बहुत हेल्प किया इसमें. और वो कैरेक्टर को जानना भी इम्पोर्टेंट हुआ होगा कि या सो उसके लिए पूरा हम फीचर फिल्म दिखाया आमिर ने. ओके. एंड देन उसमें 2-3 सीक्वेंस था और डिस्कस हुआ है. बट वो रफ एडिट देख के ये पूरा आइडिया मिल गया कि क्या वो कैरेक्टर सोचेगा या क्या करेगा. राइट. सो दैट वाज क्लियर. लवली. एंड देन स्टोरी बोर्डिंग हुआ, ऑफ कोर्स, लाइक ये सब मैं रफ स्केच बुक देखा, उसमें से कुछ स्टोरी फॉर्म किया. स्टोरी बोर्डिंग होता है, एंड देन वो स्टोरी बोर्ड्स को डिस्प्ले किया उसके सामने कि ऐसा सीक्वेंस पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऐसा होगा. राइट. ही हैड सम सजेशंस, फिर से नया स्टोरी बोर्ड बना एंड वो डिस्कशन से फाइनलाइज हुआ उसमें. लेकिन एक चीज अच्छा था कि मैंने कुछ स्टाइल फ्रेम भी दिखाया उसको, कुछ स्टाइल में करके, एंड देन ही वाज वेरी हैप्पी. इवन 1-2 एनिमेशन सैंपल्स करके दिखाया. ओके. Okay. And he gave total freedom कि आपको जो भी अच्छा लगे. So that was a hard project, right? All what is going on in your mind from your books to the video. So that's great. That's great. इसमें उसके कुछ videos है, right? वीडियो अच्छा, stills है. नहीं है. अच्छा, these are those. शूटिंग का फोटो है. So one day he spent all one day and shot making of and everything. हाँ, ये कुछ क्लिप्स है जो उसका इमेजेस है जो वीडियो से निकाला हुआ. वीडियो लाना, आई थॉट कि वीडियो के लिए टाइम रहेगा कि नहीं, इसलिए नहीं लाया. तो ये स्टेज जो है where you are actually just scribbling, it's not very sure कि ये यूज होगा कि नहीं. तो like how do you decide that okay fine, these are my finals, because they are still in that vague form, right? Like this is vague. तो ये इस स्टेज की जर्नी क्या है? When do you decide to go into making them into specific and working on clay? Yeah, mainly जब ये सब डूडल्स है उसको या स्क्रिबल्स है उसमें से सिलेक्ट करना है कि क्या काम करेगा नहीं करेगा, and try to modify or define the characters, and then try it out with colors and everything. So so then that's clear. Like always process रहता है कोई भी प्रोजेक्ट्स में. You have to do again वर्जन्स होगा. जैसे अभी ऑन द शिप में हम स्टोरी बोर्ड करते थे तो स्क्रिप्ट है, देखिए स्टोरी जब विजुअलाइज करेंगे तो बहुत सारे वर्जन होगा. सो मे बी 10-11 वर्जन्स होगा जब तक फाइनल टू रीच द फाइनल. या स्टोरी बोर्ड फाइनल होगा. तो शॉन द शीप के बारे में भी बात करते हैं अभी, because that's something very like it became so popular. And the one of the kinds. So how did this idea or this character come to your mind? Yeah, वो एक्चुअली आर्गमन का आइडिया है. मेरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ स्टोरी बोर्ड एंड एनिमेशन एंड स्टोरी बोर्डिंग का. सो स्क्रिप्ट वहाँ प्रॉपर पूरा प्रोसेस है फिल्म मेकिंग का. यू हैव अ स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, देन बैकग्राउंड क्रिएट करने वाले, कैरेक्टर डिजाइनर्स, लाइटिंग वाले, लाइक होल टीम वर्क. लाइक नॉर्मल पिक्चर फिल्म या तो वो सब शूट होता है ऐसा ही, लेकिन मिनिएचर फॉर्म में शूट होता है. बट इट्स अ बिग स्टूडियो, लाइक वन ऑफ द बिग स्टूडियो. दे हैव 4 ऑस्कर अवार्ड. So their process is very methodical. But same time they are creative. Right. So जो भी creative ideas है, so वो सब discussion से होता है. Right. So character design and everything was already done. पहले वो लोग ने एक short film बनाया था. Then वो Oscar nominate हुआ. Then they made into series. Series came later. Then
they made one feature film also. Okay. Nice. So the surprising story is that feature film has my character. I am there as a Okay. character. If you Okay. see Son the Ship movie, Huh. title called Son the Ship movie, उसमें 2-3 शॉट में मैं आता हूँ. My character is there. I am as a medical consultant. Okay. So वो farmers को देख के I gave voice also. Oh, nice. And then I write memory loss करके describe करता हूँ. Okay, interesting. So ये सारे builds जो है वो मतलब they have flexibility to improvise and put. Yeah, that is always like Always that there. is creative process. Always Okay. like you suggest new ideas and discussions होता है. बहुत सारा लंबा process है. So let's talk about this image because इसमें your reflection is there. I can see you here. Yeah, like I like all these folk art. जो भी दुनिया में folk art का study करता हूँ. And this is my glass. Yes. That's So- exactly you. So I try to depict myself Yeah. and the life around me. Yeah. तो ये सब तो 3-4-5 किया है अलग अलग. और ये folk art का I mean from where did it start? Like वो from how did you have शायद this बचपन whole से from childhood I was like क्या बोलूं mesmerized by when I see wall art और जो इवन रंगोली या जो भी folk art का फॉर्म है जो बिकॉज folk art ऐसा है जो बहुत ही रॉ आर्ट फॉर्म है. right. एंड अगर आप इंडिया का folk art देखेंगे या अमेरिकन या ब्राजील कहीं पे भी आप अफ्रीकन folk art देखें तो उसका जो सोल जो क्या बोलते हैं सोल है और आत्मा जो उसका वो सेम है. सो इट कनेक्ट्स टू एवरीवन ग्लोबली. आप वो सब ऑडियंस को कनेक्ट करता है एंड वो उसके लिए कोई एक्सपर्ट नहीं है. पीपल आर इन्वॉल्व एंड दे मेक आर्ट. Right. सो इसलिए एक आर्टिस्ट का काम नहीं है. लाइक सब लोग Community Yeah, makes the art by art community. folk arts. Yes. And that I love it. And Right. the way like उसमें भी डर नहीं है, fear नहीं है. Right. The form को distort होता है. Then colors का use Yes. होता है, bright colors, Bright form colors. and Yeah. even ornaments I like Right. a lot. So I think and, overall it's nature- very joyful because it's a Yeah. community act for making an art Yeah. piece. So it's joyful, uniting. Yeah, and they There's a lot depict there. all the art form mostly they depict nature and part of the nature. Right. So it connects. That's why it connects to everyone. Right. And Loved by. that's something which is very evident in your paintings, in these fun doodles. But yeah, आप स्क्रिबल जो आप करते हैं, आपका जो बेसिक प्रोसेस है वो एकदम सही है. This is nice. फिर ये एनिमेशन बोर्ड है. This is where you are placing them. एनिमेशन में जैसे आपका स्टिल फ्रेम से, लेकिन एनिमेशन में एडवांटेज है कि आई सी मूवमेंट in all the visual form. So you will see like आगे जो होगा एक पूरा sequence. So I can see movement in the drawing. Next में होगा. हाँ ये इसके पहले वाला. Okay. Yeah. Someone So ये jump हुआ. jumping and वो splash हो जाता है. Yeah. So बहुत कुछ like चीज जो movement में you can visualize कि ये moment में ऐसा होगा. So whatever comes to my mind just use like scribble में फटाफट करके छोड़ देता हूँ. तो इसका कुछ बना बाद में ये वाले नहीं का? इसको अभी एनिमेट करना है. Oh, I see a nice stamp here. Yeah, वो एक stamp ही है. You made a stamp of yourself. Yeah, So stamp nice. of- इसको zoom करके But दिखाते हैं. somewhere it will be used. हाँ. So This is the stamp. it's very quick scribbles and what Yeah.
These are just random thoughts that come. Yeah, random thoughts, whatever comes to my mind, I just draw it out, and when I'm sitting peacefully mainly, तो उसके लिए कोई बड़ा सोचना या कुछ नहीं, जो जो आ रहा है वो फ्लो में आता रहता है, like And later and maybe with something this can come. character also, like हाँ. एक character से start हुआ, then different these interactions between two characters. Do you also name them? अभी आ गया, पेपर पे आ गया. ब्लॉब है बस. ब्लॉब कैरेक्टर्स. Okay. क्योंकि जैसे ये पेपर पे आ गया, मतलब अभी तो नाम भी और you kind of feel everything. स्टार्ट हुआ था. आप जैसे रोड साइड में जो बेगर्स रहते हैं ना, वो छोटा व्हील्स वाला चेयर में, वो पैर नहीं है लेकिन वो लोग, बट वहां से स्टार्ट हुआ, एक कैरेक्टर बिल्ड किया, एंड देन इट्स जस्ट अ ब्लॉब, लाइक जंप्स एंड. Okay. So it's always in that होपफुली part. इसका एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे. Maybe, yeah. Is this the ये भी same? बीच में जैसे होल हो जाता है, या पूरा Yeah. वाइल्ड एक्सप्रेशंस एंड वो सब. Expressions पे बात करते हैं. हाँ. Because it's important to get, yeah, it's important to get exactly the expression and capture that thing. Yeah. So See, animators now always like what we have to like practice रहता है कि you observe everything around you, and उसमें भी exaggeration main है. Yeah. Then people enjoy it. If you make it as it is real, then इसका मजा नहीं है. So उससे भी, क्योंकि एनिमेशन में इतना मजा है कि you can go real extreme. Right. कुछ भी कर सकते हैं. right. So वो कितना, And it also adds to that one comic thing, right? Like yeah, it can give that smile. आप अगर मेरा साइट में जाएंगे तो एक प्रोमो किया था, म्यूजिक एशिया चैनल 96 में लॉन्च हुआ था बाय जी टीवी. सो उसमें एक राग मल्हार करके प्रोमो बनाया था. आप ऑनलाइन सर्च करेंगे या तो मेरा साइट में भी है. तो उसमें वाइल्ड एनिमेशन पूरा किया था कि सिंगर है, उसका एक तबला वाला है, एंड वो राग मल्हार गाता है. Yes. और डिफरेंट जेस्चर्स, बहुत ही बहुत एग्जैजरेटेड hands movements. Yes. एंड एक टाइम पे वो ऐसा करता है तो वो बादल खींच के लाता है, एंड उसमें रेन आता है, देन वो पूरा स्पेस फिल हो जाता है, और ही गोज अंडर वाटर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू दिस लोगो. सो जो भी आपको फ्रीडम है, मतलब इसमें एग्जैजरेट करना, या तो एनिमेशन मीडिया में ज्यादा आप यू कैन रियली गो वाइल्ड. Right. सो फाइनली वो सबकॉन्शियस माइंड शायद प्ले करता है ज्यादा, कि आपने जो देखा हुआ है, या तो उसको आप और कितना एक्सट्रीम तक लेके जा सकते. कभी ऐसा हुआ है कि एक ब्रीफ से, मान लो मल्हार, फ्रॉम हियर something came up and it joined to another sequence that you did for another brief altogether? या ऐसा कुछ स्पेसिफिक ये प्रोजेक्ट्स नहीं है, बट या ऐसा कोई स्पेशल या एक दो हुआ नहीं है. बट सीरीज हो सकता है. Oh. या सो वो सब स्क्रिबल भी चलता रहता है, अपने आप को विजुअलाइज करता है कि कैसे क्या क्या हो सकता है. Right. कभी मछली भी हो सकता है, या तो यहाँ पे है. And you're making a lot of yourselves in it. So मछली में भी है. सिंस Octopus ऑक्टोपस, भी है. मतलब इसलिए को हो गया था कि I do multiple things. I do sculpture, print making, gaming, tech, lot of areas. Even Wow. स्क्रीन प्रिंट भी हुआ, देन प्रिंट मेकिंग जो लिथोग्राफ से वो. सो बहुत सारा आर्ट का मीडियम से एक्सप्लोर किया. सो मे बी लाइक यू हैव डिफरेंट हैंड टू work on different things, materials and different things. Yeah. And how much that helps, like for always helps, because once you know different art styles, वो आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसमें और रिफाइनमेंट आता है. Right. कुछ नयापन आता है, डायमेंशंस आता है. अभी लेटर स्टेज आई मेड माय पेंटिंग इनटू एम्बोस्ड पेंट.
Okay. तो उसमें मैं थोड़ा एम्बोस करके उसको रेज किया पेंटिंग। तो अभी तक पेंटिंग 2D था। तो बेस क्या है? कैनवास, ये क्ले, एयर ड्राई क्ले से, एयर ड्राई ग्लेस है, ओके। एंड ऑन बोर्ड Right. जस्ट एम्बोस। Right. Nice. Is there anything about this? या ये सब कुछ मैंने ब्लर आउट किया क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट का कुछ लिखा होगा। बात चल रहा था। ओके, हाँ। बट मोस्टली व्हेन वी लाइक आई मीन मीटिंग, और सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ उसमें डिस्कशन का पार्ट नहीं है। So I have my sketchbook, so I do strange You're doodles, scribbles, escaping. and even caricature of people, and जो भी दिमाग में, वो टाइम पे बहुत पीसफुल दिमाग रहता है because you don't have to worry about like क्या हो रहा है, दूसरा लोग अपना टेक्निकल बात कर रहा है, then I don't have anything, nothing to do with, so I go into my world and वो Right. कनेक्ट हो जाता है। So daydreaming is you are good, no? switching on and off, huh? Yeah, daydreaming is good, right? या डे ड्रीमिंग इज ऑलवेज लाइक, या वो तभी तो क्रिएटिव, सब क्रिएटिव लोग को डे ड्रीमिंग होना चाहिए। और आपको स्टेज सब लाइक रियलिटी में भी कुछ दिखना चाहिए। जैसे अभी आपका बहुत सारा ग्रीनरी है, बट यू सी ऑल दिस स्क्रिबल्स देयर आल्सो इन द नेचर। Yeah, in the nature. Yes. सो वहां से आपको कुछ फॉर्म दिखेगा, एंड देन यू ट्रांसलेट इनटू योर मीडियम। Right. Right. वो या तो सबकॉन्शियस दिमाग से वो आ जाएगा, आपका काम में दिखेगा, Yeah. बट ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्शियसली लुकिंग अराउंड यू ना स्पेस, तो जितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ, वो उतना ही मन में रह रहा है, और जो अंदर, हाँ, Yeah. आपका स्टोरेज हो रहा है, Right. एंड देन इट विल कम आउट। राइट, राइट। एंड बिजी लाइफ में अभी आई एम श्योर यू मस्ट बी रियली हेक्टिक लाइफ रहेगा, तो उसमें हाउ डू यू फाइंड योर टाइम टू स्लो डाउन एंड यू नो गो इन दिस Yeah. मोड ऑफ क्रिएटिविटी? अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सबके लिए, और अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो अभी सोशल मीडिया है एंड उसमें पूरा एक्टिव हो जाता है, सो नाउ लाइक आई एम कॉन्शियसली टेकिंग लॉट ऑफ टाइम अवे फ्रॉम, उसमें से निकालना है। एक बार आप फेसबुक या कहीं इंस्टाग्राम में चले जाते हैं, उसमें से फिर वापस निकलना है, देन यू कम टू योर वर्क, सोचना या क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिस्ट्रैक्शन है हाँ, बहुत। हाँ, मेरा शुरू का जो लाइफ था बचपन में, दैट वाज बेस्ट, बिकॉज वो टाइम पे टीवी भी नहीं आया था। टीवी ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था, बट वो ब्लैक एंड वाइट टाइम, और वो टाइम पे ज़्यादा टाइम नेचर के साथ रिवर बेड में जाके खेलना, या तो पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं है, ओनली लास्ट 2-3 महीना पढ़ना है, और उसमें ओके मार्क्स आ जाएगा 50%। बाकी की पूरा जिंदगी। टीम खेलना है, और अपना गार्डन था एक छोटा, मतलब पूरा नेचर के साथ ही टाइम बिताना, दोस्तों के साथ खेल। और हमारा एक लेक था, तो आधा दिन वहाँ पे हम लेक में पड़े रहेंगे। सो वो एक लाइफ था, और एक छोटा टाउन है, तो सिटी नहीं है, तो वो जगह पे आपको जो लाइफ मिलता है, अभी सिटी में बच्चे बहुत मिस करते हैं। तो वहाँ का जो लाइफ है वो बहुत जरूरी है। पूरा आपका पर्सनालिटी, या तो जो आप एज ए ह्यूमन बिल्ड होते हैं, वो जो ये छोटा गांव या तो छोटा टाउन में अगर क्वालिटी टाइम बिताया है, उसका एक्सपीरियंस किया है, जो ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो सिटी वाले लाइफ में बहुत ही है। अभी तो आजकल किसी को पता भी नहीं है कि कैसा रूरल गांव में कैसा लाइफ होता है। रूरल है क्या, वही मालूम। हाँ, वो भी पता नहीं। हाँ, Nowadays, they don't know the difference between buffalo and a cow. यार रही तो वो बहुत ही कई बार गए थे तो मेरी जो नाती थी वो पूछ रही थी buffalo और cow में क्या डिफरेंस है, ऐसे मालूम पड़ता सो वो बहुत ही आई थिंक क्रिटिकल स्टेज है Yeah. जो। और अभी तो वैसे भी या मतलब देयर इज डिस्ट्रैक्शन ही क्लियर है, प्लस या देयर इज वो हेल्पफुल भी है अगर सही चैनल में आप गए तो। हाँ, आप देखेंगे पूरा दुनिया से लोग शेयर करते हैं अपना काम, सो यू गेट लॉट अपॉर्चुनिटी टू सी एवरीवन्स वर्क,
ओनली थिंग कंट्रोल करना अपने आप को कि इन्फ्लुएंस नहीं होना है. राइट. सो मेनली वो सब चीज़ इन्फ्लुएंस करता है, और अपना काम में जब आ जाता है तो आपका ओन पर्सनालिटी ख़त्म कर देता है. सो आपको कॉन्शियसली ट्राई करना है कि यू डोंट हैव टू फॉलो एनीवन एंड ट्राई टू बिल्ड योरसेल्फ. और आप अपना कुछ क्या बोलना चाहते हैं, या तो अपने आप को खोजना है. So do you meditate? Do you meditate? या मेरी Yes. Tell us So- about it a little. या सो मैंने दीक्षा लिया है, तो इट्स लाइक शक्तिपात दीक्षा है, और उसमें मेडिटेट करना है, और उसके लिए कुछ रूल्स ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट पीसफुली बैठना है, एंड देन यू हैव टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. जो थॉट्स को कंट्रोल करना है, थॉट्स ज़्यादा नहीं आना है. देन यू गो इनटू योरसेल्फ, एंड देन वो एक्सप्लोरेशन होता है. और वो स्टेट हेल्प करता है इन Yeah. क्रिएटिविटी. या क्रिएटिविटी में बहुत हेल्प बहुत करता है, बिकॉज यू नीड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, Hmm. एंड देन अपने आप को जानना है कि क्या है. तो शायद वो कनेक्ट करता है यूनिवर्स से, या बट यू गो इनटू डिफरेंट स्पेस, एंड देन डिस्ट्रैक्शंस उसमें भी आते हैं. थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ही Right. डिफिकल्ट है. Right. To go to no thought is also a difficult या thing. तो True. उसके लिए, बट दैट मेक्स यू पीसफुल. And do you visualize something? कुछ नजर आता वो है? उसमें कुछ दिखता है, या तो हाँ. विजुअलाइज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम में रिफ्लेक्ट करता है. Right. Right. Interesting. Once you're doing animation, you're doing painting. Yeah. So how do you approach both? How different is it? इट्स लाइक पेंटिंग, जब मेरा पहला सबसे फाइन आर्ट पहले किया था मैंने, तो पेंटिंग से लगाव था. मैंने एक्चुअली कमर्शियल आर्ट किया. कॉलेज में भी मैं हर एक डिपार्टमेंट में जाता था. सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, इवन कुछ टीचर भी, कि तू पेंटिंग कर रहा है कोर्स, या कमर्शियल कर रहा है, या स्कल्पचर कर रहा है. तो सब जगह पे लकीली मेरा जो टीचर्स अच्छे थे, दे वर सपोर्टिंग. मैं कुछ भी करूं तो आई वाज लर्निंग एवरीथिंग, एंड मुझे पैशन था सब सीखने के लिए. एंड देन उसके बाद एनिमेशन पता चला कि एनिमेशन एनआईडी में है, तो वहाँ पे मैं ज्वाइन किया. और एनिमेशन लाइक इज गिविंग लाइफ टू स्टिल फ्रेम्स. सो and creativity is the same, and like you have to think of ideas and all. Only thing ज़्यादा प्रोफेशनल रहना है, because you have to do clients work. तो क्लाइंट को क्या चाहिए, उसका ब्रीफ को फॉलो करना है. प्रोफेशनलिज्म है. पेंटिंग में यू हैव फ्रीडम, यू डू वट एवर लाइक यू लाइक. सो वो कुछ टाइम तक सिंस लाइक ऐसे हमको टीचिंग मिला कि आप प्रोफेशनल काम, और कुछ प्रोफेशनल काम करने के बाद यू नीड सम ब्रेक. तो ये ब्रीदिंग टाइम के लिए पेंटिंग बहुत अच्छा है. व्हेनेवर आई गेट टाइम, आई गो लाइक फॉरगेट एवरीथिंग, गो वट एवर आई लाइक, डू वट एवर आई लाइक. तो वो एक ब्रेक अच्छा था. और अभी भी सेम चलता है कि कभी भी शांति चाहिए, पीसफुल चाहिए, मैं पेंटिंग करने बैठ जाता. देन इट्स लाइक मेडिटेशन. अपना Yeah, that's very relaxing. रिलैक्सिंग, in a way. एंड यू फॉरगेट एवरीथिंग. पूरा दुनिया भूल जाता है कि क्या हो रहा है. कभी साउंड भी नहीं सुनता है. Interesting. So when a client's brief come, उस टाइप का लिबर्टी हमें क्यों नहीं मिलता है? ये जो पीस की बात की, रिलीविंग एक्सरसाइज की बात की, वो क्लाइंट के ब्रीफ में कैसे नहीं मिलता है? कुछ क्लाइंट ऐसे हैं कि आपको फ्रीडम देते हैं. जैसे आमिर का केस में, सिंस ही इज क्रिएटिव, राइट. एंड उस बिगिनिंग में ही वाज श्योर कि मैं वट एवर कर रहा हूँ, मैं राइट पाथ में जा रहा हूँ, और वट एवर ही वांट्स. द फ्लो वाज करेक्ट, दोनों का सिंक अच्छा था. लेवल सेम है, मतलब सोचने का लेवल. देन वो टाइम पे यू गेट ऑल द फ्रीडम. सो वहाँ पे उसने टोटल फ्रीडम दिया, एंड आई एम रियली लकी दैट उसके साथ काम करने का मौका मिला. Lovely. और
जब आप काम एंजॉय करते हैं और फ्रीडम है तो पीपल विल एंजॉय योर वर्क. Right. सो इट्स लाइक बोथ वे. Both way. Yes. या Yes. तो आप जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तो आप ऑडियंस भी एंजॉय नहीं करेंगे. सो जबरदस्ती नहीं करना है. अगर बहुत बार कुछ प्रोजेक्ट्स आता है तो मैं अगर ना बोल देता हूँ कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मुझे सेटिस या फ्रीडम नहीं है या तो कंट्रोल नहीं है और फिर मैं सही जस्टिफाई नहीं करूँगा अपने आप को, कर नहीं पाऊँगा. Nice. Have you been through a block? हाँ, Have you been through a block, artistic block? ब्लॉगिंग. नहीं, block. हाँ, Blank मेंटल होना. ब्लॉक हाँ, वो mental होता है. block. Yeah. वो बहुत बार होता है जब कुछ दिमाग में आइडियाज नहीं आता है. तो बेस्ट थिंग इज टू गो अवे फ्रॉम जो प्रोसेस से निकल जाना, हटके कुछ मे बी यू रीड और यू गो विजिट योर ओल्ड वर्क और कुछ और क्रिएटिव लोग का काम देखो एंड फॉरगेट अबाउट वट एवर यू आर डूइंग. एंड कहीं ना कहीं फिर से आई थिंक वहाँ पे भी सबकॉन्शियस माइंड प्ले करता है. वो फिर से ट्रिगर आ जाता है, वापस थोड़े influence बट हो जाते हैं. यू नीड टू गिव सम ब्रेक. आप Yeah. कोर्स करेंगे तो नहीं होगा. आप शायद 2-3 दिन में फिर से वापस आएंगे या 1 वीक के बाद फिर से आप. तो बहुत बार मैं काम करके आधा काम करके छोड़ भी देता हूँ पर्पसली, और तभी जो मिस्टेक्स या तो वो बहुत कुछ दिखता नहीं है. आफ्टर 1 वीक उसको देखता भी नहीं. 1 वीक के बाद फिर से देखेंगे, देन यू रियलाइज लॉट ऑफ और यू सी लॉट ऑफ न्यू इम्प्रूवमेंट्स कि क्या क्या कर सकते हैं या क्या प्रॉब्लम है वो दिखता है. करने के टाइम में लाइक यू आर इनटू Right. एनी प्रोजेक्ट पता नहीं चलता है. अंदर घुस जाते हैं, फिर थोड़ा एक ब्रेक के बाद आना होता है. इसके बारे में बताइए थोड़ा. हाँ, ये ऐसे ही अभी भी इसका कहीं ऐसा बहुत सारा इमेजेस है जो स्ट्रेंज दिमाग में आता है. जैसे कैट बलून के साथ फ्लाई कर रही है एंड व्हेन आई सी लाइक व्हेन आई वाज इन यूके मोस्टली वहाँ पे हुआ था. सो ये सब घर के ऊपर कुछ है या तो काव वहाँ पे तो स्ट्रेंज कैरेक्टर्स दिखता है. तो ये सब ये भी ऐसे ही जब टाइम मिलता है तो ब्रेक के टाइम में या तो लंच ब्रेक में, बाहर ब्यूटीफुल वेदर है तो लंच ब्रेक में सब बाहर गार्डन में बैठे हैं तो मैं स्केच बुक रखता था और ब्रश पेन से ऑलमोस्ट 40-50 ड्राइंग्स आर देयर लाइक. Wow. ऐसा अजीब अजीब सा, मेनली टू गो अवे फ्रॉम रियलिटी कि क्या रियल एलिमेंट है बट इन टू और डिफरेंट ये सारे एलिमेंट. एक स्टाइल में है. दैट इज व्हाई आई वाज मोर क्यूरियस बिकॉज दे डू रिफ्लेक्ट दैट फोक आर्ट स्टाइल एंड दे या हैव. इसमें ऑर्नामेंटेशन है प्लस. यस यस. तो मतलब लगता ही है कि ये एक टाइम फ्रेम से एक माइंड फ्रेम से आया है ना. या ये सब ड्राइंग से भी मुझे बहुत हेल्प हुआ जो मेरा आर्ट स्टाइल को रिफाइन करने के लिए. तो यही कुछ एनिमेशन आइडियाज के लिए सोचता था कि मल्टीपल हेड कम्स आउट फ्रॉम द कैरेक्टर्स एंड lot of fun. Sorry. Yeah. From all these characters that are from your own thoughts, what is your favorite? What is the one that you really resonated with the most? क्या कैरेक्टर ऐसा कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है जो बट मुझे फ्लेक्सिबल जो कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा पसंद है. मे बी बिकॉज ऑफ एनिमेशन. जैसे इसमें ब्लॉक कैरेक्टर है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इट चेंजेस लाइक. एक प्रोजेक्ट किया था पर्पल एंड ब्राउन यूके में आर्डमंड के साथ. तो वो भी एक छोटा क्ले का लंप ही है और 2 आईज है और वो चेंज होता है, शेप चेंज होता है. सो जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है एंड वहाँ पे आई थिंक वो ज़्यादा एंजॉय करता है ऐसे कैरेक्टर्स जिसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है बट
more like flexible. And we can do whatever you want. Yeah. और वो एडेप्ट करता है। शायद वो क्वालिटी मेरा क्वालिटी भी है कि मैं कोई भी सिचुएशन में को एडेप्ट कर लेता हूँ और कोई भी स्टाइल को भी एडेप्ट करता हूँ। तो ऐसा रिजिड अंदर नहीं है कि मैं यही करूँगा या तो यही करूँगा। लाइक आई कैन एडेप्ट इन टू लोकेशंस या स्टाइल या व्हाटएवर, कोई भी कंडीशंस। मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो आई कैन सर्वाइव विथ वेरी मिनिमम थिंग्स, या तो बहुत लग्जरियस है वहाँ पे भी मैं अच्छी तरह रह सकता हूँ। सो वो हिसाब से भी मेंटली लाइक इनटू दैट स्टेज कि कहीं पे शौक नहीं है कि अरे मुझे यही चाहिए या तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए। कुछ और ये भी चीज हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी है शायद जो that allows you to get more ideas and get Yeah. more because you are allowing everything to come to you. Yeah, वही। So yes, that's So- a very open this thing. आई थिंक वो चीज होगा तो और ज्यादा आप फ्री हो जाता है। And have you experienced something where you are creating something, कोई project हो या कोई अपना ही painting हो, where you feel that you are you're feeling that अभी you're very less into present. You have really gone inside the painting or inside the work. You've just been inside the world, Bahar ka atmosphere, everything is gone. So that transformation where you are feeling that you are now getting deeper, that happens to you. Do you feel that it's getting in? क्या वो इन्वॉल्वमेंट एक बार स्टार्ट किया कुछ भी चीज तो उसमें हो जाता है। और वो कंट्रोल में है, लाइक कब आना है, कब आएगा, वो हो सकता है या वो शायद मेरा भाई सही। कंट्रोल करता है कि बाहर आ जाओ, चलो अभी थोड़ा ब्रेक लेना है, या तो मेरा डॉटर जो काव्या है, मेरा वाइफ, एक्चुअली मेरा जो फैमिली, मेरा वाइफ एंड डॉटर, वो लोग का बहुत ही, हिना एंड काव्या, हिना मेरी वाइफ है, सी लाइक ऑल्सो लाइक क्रिएटिव, उसका दिमाग है सब है, एंड ही काव्या तो आर्टिस्ट है। सो वो लोग का सपोर्ट बहुत ही है मेरा जो कैरियर में है, एंड आई थिंक उसकी वजह से मैं ये लेवल तक, या तो जो भी मैंने किया है तो तब तक, और वो लोग ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। मैं उसको टाइम नहीं दे पाया ज़्यादा, मैं मेरा काम में इन्वॉल्व हूँ, तो वो भी सेक्रीफाइस है वो लोग का। बट दे आर मोर हैप्पी व्हेन आई एम वर्क। अभी मैं कुछ टाइम से जब मैं बेंगलोर में था तो बहुत कम काम हुआ था, 1-2 साल। देन सी वाज वरीड कि आप कुछ कर नहीं रहे। तो अभी फिर से काम चालू हुआ था, सी इज हैप्पी कि मैं कुछ फिर से स्टार्ट किया काम। इंटरेस्टिंग। और आपने इतने मिक्स मीडियम्स में काम किया, यू हैव आल्सो डन प्रिंट मेकिंग, यू हैव आल्सो डन पेंटिंग, एवरीथिंग। सो इज देयर अ कॉलिंग, लाइक यू फील लाइक अभी ये करना है, मतलब ये चीज बुला रही है? नहीं, शायद उल्टा होता है। एक चीज करने से मैं जल्दी बोर हो जाता। अच्छा। तो कुछ काम करने के बाद मैं बोर हो जाता हूँ, देन आई टेक ए ब्रेक, मैं दूसरा कुछ करता हूँ। तो वो आई थिंक उसकी वजह से हेल्प होता है कि आपका दिमाग ज़्यादा, लाइक यू आर नॉट कॉट टू वन वर्क पॉइंट, तो वहाँ से Which is fine. तो मीडियम चेंज हुआ, बट कभी रिफ्लेक्शन तो सेम है, मतलब यू आर मेकिंग द आर्ट, सो सपोज यू आर डूइंग अ प्रिंट मेकिंग और यू आर डूइंग से स्कल्पचर, सेम स्टाइल फॉरवर्ड होता है या कुछ नया होता है? हाँ, वो ट्राई करता हूँ कि जैसे स्कल्पटिंग, जो स्कल्पचर का यूज है अभी मेरा पेंटिंग में, तो अभी पेंटिंग हो गया, बहुत सारा किया है, देन नाउ सेकंड लाइक व्हाट, तो मैं अभी उसको एम्बोज करने का कोशिश कर रहा हूँ कि एम्बोज स्टाइल में वो पेंटिंग में ट्रांसलेट कर पाऊंगा कि नहीं। और अभी मैं बेंगलोर में था तो तांजोर स्टाइल का, तांजोर मेरे लिए मतलब सीखने का, जब देख के सीखने का बहुत मन हुआ, तो लकीली वहाँ पे बाजू में सब क्लासेस मिला। देन मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने तांजोर का स्टाइल सीखा, तो 3 महीना पूरा तांजोर स्टाइल का पेंटिंग
It's a जब, luxury to सीखने के dedicate to time में- something new. हाँ? सब नया सीखने या का भी तो नया हाँ, अभी yes. सीखना है, हाँ, and this process will continue I will do forever. that, Yeah. yeah. तो, और वो वो अपने आप को एक्सप्लोर करना या नया सीखने का जो वो सब में आई थिंक होना चाहिए कि कुछ ना कुछ नया सीख, और बाद में हो सकता है कि मैं वही जो नया नॉलेज है उसमें वो आगे कहीं जाए। और अप्लाई करूँ। yeah, yeah. हो सकता है मेरा पेंटिंग में मैं वो स्टाइल को Develop एडप्ट कर करूँ। सकते हैं, हाँ। तो बट सीखने के टाइम में लाइक अगेन लाइक यू हैव टू अनलर्न। हम्म, अभी जो भी नॉलेज है वो भूलना है, वो जो बोलेगा अभी ये चिपकाओ तो वो चिपकाना है, क्वेश्चन नहीं करना है। तो वो एटीट्यूड रखना है कि जब आप सीख रहे हैं तो आप नहीं, आपको कुछ पता नहीं, ऐसे लाइन खींचो, वो लाइन खींचना है। अभी ये यहाँ पे फेविकॉल लगाओ, वो लगा, मतलब तांजो स्टाइल का बात। Right. तो तब तक दूसरा हमको पता है कि मैं ये सब खत्म कर दूंगा, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना, मतलब जो बोलेगा Yeah, इतना ही करना जितना है। बताया वैसे वैसे step by step. Yeah. That's nice. That's actually So very then nice. you do whatever like Yeah. once, लेकिन एक बार आप कुछ जान रहा है, मतलब आई नो समथिंग, तो वहाँ पे पूरा वो अंदर नॉलेज नहीं ले जाएगा, लेगा। नॉलेज अंदर नहीं है, वो ब्लॉक हो जाता है। Yeah. So you have to like unlearn lot of things and then learn. Right. So what next? आपको और क्या सीखने की इच्छा है? अभी मेनली आई थॉट कि मेरा स्टेज में मुझे जो भी नॉलेज है या तो वो थोड़ा शेयर भी करना चाहिए। सो इसलिए आई जॉइन IIT के एज ए प्रोफेसर। सो मैं भी मेरे बच्चों को कुछ सिखा सकता हूँ या बच्चे को थोड़ा ज्ञान बांट सकता हूँ। तो वो That's a वो very उसका noble कैरियर profession. के लिए Yes. शायद शॉर्टकट हो जाए। IIT में आर्ट्स लाइन है। है। Animation. Yes. IDC में, Okay. so animation course. Nice. You're That's lovely. People who's drawing all the time, whether you're working or you're de-stressing. Yeah. Yeah. दोनों चीज में वही एक टूल है। Only if you- True. So I think drawing हमेशा रहना चाहिए सबके लिए। भले अगर de-stress कर रहा है आदमी and you're moving away from it, but you're moving away from animation into painting, yeah. even to de-stress. Yeah. It's the same thing that's applying both ways. Yeah, it's a strange thing, but yeah, the same thing enables you to de-stress Stress and as well as gain stress from the other kind of something. True. But then I think for an artist, I'm also a visual artist, so I can relate. Some kind of work is calling. That is also visual only. The other kind of work is repelling. So even I've experienced that. It's strange, but happens. Is there anything that we missed here? यहाँ क्या हो रहा है? Yeah. No, like when I seen two players playing chess, हाँ. chess खेल रहे थे, and then जो दिमाग में आता है कि like it's not only chess, like it's like they're fighting. They're fighting. Yeah, like उसका आर्मी है, उसका आर्मी है, and there's a war going on. So वो दोनों का दिमाग में जो mental condition है, तो वो सब दिमाग में आता है। So whatever comes to mind, like कि उसका दिमाग से क्या जो दिमाग में क्या चल रहा है। Yeah. And then animation allows communication beyond what's realistic. So, you know, So that's reality how. को break करना है। हाँ. What can be the next level कि क्या हो सकता है। So ज़्यादा I think Lovely. So thank you so much. And Thank you. now is the time that we will ask you to doodle. yes. Scribble actually for us. हाँ. Big one है इधर. हाँ, बड़ा पेपर रहता अच्छा है ना? हाँ. वो एक एनवेलप में डाल दिया होगा मैंने. ब्राउन एनवेलप.
इसके नीचे दे दे thumbs कर. Yeah, you can scratch on ये वाला 8 भी है ना, 8 भी है. टूट जाएगा ये. कुछ तो 2 लेयर हैं, Oh yes, oh yes. कैंची से करना पड़ेगा. हाँ, उल्टा है. Knitting ना. Anything, literally anything. So scribbling is an exercise that I'm promoting, saying that you just fearlessly, aimlessly scribble without any tension. And I think scribble is where we all unite. It's a very relieving exercise, also revealing Yeah. exercise. Which I was talking about the muscle. The movement, I could see that. flexibility, Yes, yes. So when you start moving from here, like your joints gets free from here, then you have more control on the lines. There's no hesitation in the line. There's more. The ornamentation is happening. Yeah, yeah. That वो आ जाता है. It can go on and on. Anything with color now? Color, yeah, I think ये अच्छा है. Colors, Acha, okay. You carry on with yeah, what you like. maybe फिर 2-3 कलर वो सब करना. जो आपका ये है ना, कौन सा चाहिए? ये कलर और कॉन्ट्रास्ट लेते हैं या पर्पल लेते हैं. Purple. Okay.
Yeah. ठीक. So up to ye scribbles and we don't know what it is, but Yeah, now let's we see can- what will happen. Maybe Yeah. it will reflect somewhere in your work and we'll get to know. Yeah. So this is nice exercise. Like Yeah. you you figure out like, और जो एक्सप्लोर करते हैं नया जो क्या बोल रहे हैं, मे बी सरप्राइजेस मिलता है. Hmm. So and then suddenly you see some nice forms and also. Yeah. Yeah. So that might help to create something new. Lot of ये freedom. क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है. I'm sure. शायद आपने एक्सप्लोर किया है आपके काम में. Thank you. Thank you so much, Dhimant. This was amazing. Really nice that you shared. Yeah, signature, Thank signature. you, Yes, masterpiece of your mind. man. देख लिखना जरूरी है. Any questions anybody wants to ask? This is the time, and make the most of this really nice, candid interaction that we have now. You guys are design students from Whole Academy. Okay, all of you. अच्छा पॉलिटिक्स. Which year? Like which batch or something? Level 1, so like year 2, Okay, third year, like last year. okay, okay. Nice. And which course are you doing there? Communication. So communicate. Is there anything that you guys want to ask? You can ask now. So how much time did you take to figure out your own style? मैं 98 से कर रहा हूँ. So by 2013 I could produce some work. और इनिशियली आइडिया ही नहीं था कि जब मैं A4 साइज में ज़्यादातर काम करता था. And that also a lot of drawings were done while traveling in the train. So मैं इधर बॉम्बे से त्रिवेंद्रम या तो गुजरात से त्रिवेंद्रम जाने के टाइम में ऑलमोस्ट लाइक 3 दिन जाता है, 2.5 days ट्रैवलिंग. सो वो टाइम पे मैं स्केच बुक मेरे साथ है एंड बहुत सारे ड्राइंग में जो लाइन क्वालिटी भी वही, मतलब ट्रेन हिलता है ना, तो वो टाइम पे कंट्रोल करना है, बट यू गेट नाइस लाइन क्वालिटी वाइल मूविंग द ट्रेन, लाइक मूवमेंट से. और हाँ, सो जो वो टाइम पे भी लोग अगर बात कर रहा है तो वो विजुअल्स कम दिमाग में आते हैं, जो भी आता है. तो कुछ विंडो से बाहर देखा, एक जगह पे है ना, एक बंदा जो डॉग जैसा क्रीचर के ऊपर बैठा है. तो वो वहाँ पे हुआ था, जो विंडो से मैं बाहर देख रहा था, तो एक बच्चा डॉग के ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहा था. एंड दूसरा एक बंदा था जो मेरे ऑपोजिट न्यूज़पेपर लेके कुछ फ्लर्ट का न्यूज़ देख रहा था. सो 2-3 इमेज कंबाइन हो गया. जो वो कुत्ता एक्चुअली एलियन टाइप कैरेक्टर हो जाता है, उसको ग्लास लगा के, और फ्लर्ट में वो स्विम कर रहा है. सो ऐसा एक पेंटिंग बन गया था बाद में. बट 2013 आने तक मैं ऐसे ही ऑलमोस्ट लाइक 200+ ड्राइंग्स बनाया होगा, और फिर वाटर कलर करता था उसमें. वो ऐसे ही उस कुछ पर्पज नहीं था, जस्ट मस्ती के लिए, मजा के लिए. हाँ, फिर कुछ दोस्तों ने देखा, बोला था यू शुड प्लान फॉर एग्जीबिशन, और वो टाइम पे जहांगीर के लिए अप्लाई किया. एंड देन लकीली आई गॉट. तो 13 में पहला जहांगीर में एग्जीबिशन हुआ, और उसके बाद फिर उसको सीरियसली थोड़ा सोचा. बहुत टाइम तक मैं पेपर एंड वाटर कलर यूज करूँ. बाद में कुछ क्लाइंट बोला कि हमको कैनवास पे चाहिए. देन वो नदी में कैनवास, क्योंकि उसका ड्यूरेबिलिटी एंड वो बहुत एक्रेलिक कलर्स, प्लस आई यूज गोल्ड, रियल गोल्ड इन माई वर्क.
सिंस आवर जो ओल्ड आर्ट फॉर्म्स है, मिनिएचर आर्ट या तो बहुत सारा जगह पे, और जैन जो पेंटिंग्स है वो सब में गोल्ड ज़्यादा यूज होता है, तो वो शायद गोल्ड एक टेक्सचर जैसे यूज किया इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिस। तो सर वहाँ से आप फिर एनिमेशन में कैसे हैं? एनिमेशन फाइन आर्ट के बाद पता चला कुछ फैकल्टीज आए थे एनआईडी से, अहमदाबाद एनआईडी से कुछ हमारे कॉलेज में आए थे, हमारे प्रिंसिपल को जानते थे, तो वो लोग जजिंग के लिए आए थे, उसमें मुझे एक प्राइज मिला था, तो वहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ एनआईडी फैकल्टी से, और वो लोग उसको पोर्टफोलियो देखा वो लोग ने, देन वो लोग सजेस्ट किया कि यू शुड डू एनिमेशन, क्योंकि इलस्ट्रेशन अच्छा है उधर। एंड तब तक अहमदाबाद में मैं कभी जाता था, लेकिन पता नहीं कि अंदर एनआईडी है, बाहर इतना ग्रीनरी है, और अंदर क्या बिल्डिंग है और सिक्योरिटी टाइट है, कोई जा नहीं सकता, तो उसकी वजह से इंट्रोडक्शन हुआ कि एनआईडी है, और अंदर जाके फिर कुछ काम एनिमेशन फैकल्टी को दिखाया, एंड वो बोले कि आप ज्वाइन करना चाहिए। और जब मैं पास आउट हुआ, फाइन आर्ट कंप्लीट किया, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, और 2 इयर्स के बाद दे विल टेक, बट वहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे कुछ एनआईडी में, तो उसमें मैं असिस्टेंट जैसे ज्वाइन किया, एंड उसके बाद मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया एनिमेशन की। सो जब वो टाइम पे टीवी में आते थे रशियन एनिमेशन सैटरडे आते थे, ब्लैक एंड वाइट, और वो देख के बहुत क्यूरियोसिटी होता था कि कैसे ये सब, पता है कि ड्राइंग है, वो मूव कर रहा है, उसमें लाइट है, तो वो कैसे होता होगा, वो सब क्यूरियोसिटी था। बट जब पता चला एनआईडी में कि ऐसा एनिमेशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो फिर वो वहाँ से एनिमेशन जर्नी चालू हुआ। एंड क्लेमेशन एक जॉन एसवर्थ एंड कैथी करके एक यूके से वर्कशॉप लेने के लिए आए थे, 2 महीना वर्कशॉप एनआईडी में लिया हमारा सबका, एंड उसमें पूरा टेक्निक बताया कि कैसे स्टॉप मोशन होता है, डेमो हुआ है हुआ, एंड तब से लेके जहाँ पे भी मैं कोई भी स्टूडियो ज्वाइन किया, वहाँ अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है तो क्रिएट किया। That's nice. एंड कुछ प्रोजेक्ट्स किया क्ले, एंड फिर आर्टमन एनिमेशन में जो स्टॉप मोशन में टॉप है, वहाँ पे काम करने का मौका मिला। That's nice. Anyone wants to ask anything? Yeah. Throughout your journey, आपके पूरे journey में creatively सबसे बड़ा challenge है, and how did you overcome it? एक्चुअली हर एक प्रोजेक्ट क्रिएटिवली चैलेंज होता है, एंड समहाउ मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट आया जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, या तो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स जो दूसरे नहीं कर पाते हैं, वो मेरे पास थे। जैसे आपने एक राजस्थान टूरिज्म एड देखा होगा, सैंड एनिमेट होता है, Sand animation. फॉर्म होता है, एंड वो कभी टॉप से एनिमेट नहीं किया था किसी ने, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं कि कैसे होगा, बट जो सुरेश स्टूडियो है, वहाँ पे मैं काम के, मतलब वो लोग का प्रोजेक्ट था, आई वेंट देयर एज एनिमेटर, तो फिर एक्सप्लोर किया कि कैसे इसको एनिमेट करें, एंड जब एड फिल्म्स एंड वो सब का टाइमलाइन बहुत टाइट है, यू हैव टू डू इट इन सो आपको लाइक बहुत टाइम निकालना पड़ता है, लाइक नॉर्मल लाइक 12 आवर्स ए डे काम करना है, एंड देन ट्राई टू सी कम अप विथ न्यू सॉल्यूशन। तो एनिमेट किया, सैंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है,
देन कुछ और तरीका निकाला कि सैंड में पानी डाल के एनिमेट किया, लेकिन वो वेट सैंड लगेगा, तो वो कंट्रोल करना मुश्किल था. देन वी मेड सम 2D एनिमेशन एंड उसको कट आउट करके उसके ऊपर क्ले लगा के सैंड लगा के एनिमेट किया. सो somehow वो टाइम पे सॉल्यूशन निकालना. एंड but it worked very well. Almost like 10 hours per day शूट होता था. और आपको पता है कि 1 सेकंड अगर दिन में अगर हम शूट करेंगे तो 4-5 सेकंड 6 सेकंड शूट होगा, वो ऐसे ही चला जाता है, लेकिन वो पूरा दिन का काम है, तो बहुत टफ है. तो वो है. फिर सॉन द शिप में कुछ एक तो स्टॉप मोशन है और दूसरा गो मोशन है. गो मोशन इससे भी डिफिकल्ट है, लाइक फ्रेम बाय फ्रेम मूव करना है, लेकिन गो मोशन में बैकग्राउंड कुछ मूव होगा या कुछ भी होगा तो वो एक साथ शूटिंग के टाइम में ही मूव होगा, स्पीड, सो ब्लर वो सब इमेजेस वो सब. तो वहाँ पे कुछ शॉट्स चैलेंजिंग था. तारे ज़मीन पर का बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 महीना है. रिलीज का डेट पक्का है कि ये डेट अनाउंस कर दिया था, ये डेट पे रिलीज होने वाला है. एंड देन 2 महीने पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ. हम लोग ही केम टू मी एंड कुछ लोगों ने किया था, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया. देन मेरे पास प्रोजेक्ट आया. देन वो 2 महीना में somehow like थिंग वर्क आउट कि कैसे कुछ टेक्निकल चैलेंज है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी एंड टेक्निकलिटी स्टॉप मोशन में बहुत बैलेंस्ड है. कैसे कुछ चीज़ मूव होगा, कैमरा कैसे वर्क होगा, कैमरा के लिए क्या कुछ इक्विपमेंट बाहर से मंगाना पड़ा, और पैरेलली आइडिएशन हो रहा है, ये सब हो रहा है. इवन ये मीडियम भी कभी मैंने ट्राई नहीं किया था. सिर्फ कॉमिक बुक बनाया था क्ले में, एम्बोज में, लेकिन उसको एनिमेट नहीं किया. तो वो कैसे एनिमेट होगा वो सब सॉल्व करना. प्लस जब लाइटिंग करते हैं तो उसका शेडो अगर आएगा तो वो 2D लगेगा, स्पेस तो डेप्थ चला जाएगा. तो वो सब कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत सारा चीज़. कैमरा स्टैटिक था, टेबल टॉप शूट हुआ था. सो इफ थिंग कम्स टूवर्ड्स कैमरा देन व्हाट विल हैपन, क्या करेंगे, तो बहुत सारा सॉल्यूशन निकालना पड़ा. बट हर एक आई थिंक प्रोजेक्ट चैलेंजिंग होता है इफ यू ट्राई टू मेक इट परफेक्ट. So 2 months was As aspiring designer, is there anything you would like to advise us creatively? या मेनली जैसे अभी यहाँ पे आए आप, ये जो एग्जीबिशन देखने, कांचन का काम देखने के लिए, सो मे बी आपको और कुछ नया आइडिया जाएगा या तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, तो दैट विल इनडायरेक्टली आपको हेल्प होगा. तो आइज ओपन रखना है कहाँ पे क्या हो रहा है. और आप लोग एक तरफ से लकी भी है कि आप जो भी इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारा मटेरियल्स अवेलेबल है, तो वो स्टडी करना या तो देखते रहना. नॉलेज बहुत सारा शेयर करते लोग, बट ओनली थिंग कैरीड अवे नहीं करना. आपको जो फोकस करना है वो रखना है. दूसरा अपने आप को जानना है कि आपको क्या पसंद है. तो आप जो पसंद है वो एंजॉय करेंगे तो और आपका लाइफ मतलब और आप सक्सेस की तरफ जाएंगे. एंड डोंट कंपेयर विथ अदर्स. बहुत सारे लोग अच्छा ये लेवल पे, मुझे यहाँ पे जो फ्रेंड्स में बहुत सारी जगह पे होता है कि एक दूसरे, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है, सबका लाइफ अलग है, उसको क्या बेनिफिट है या आपको क्या बेनिफिट है, तो किसी के साथ क्रिएटिव फील्ड में किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है. और आपको अपना सक्सेस, आप 5 साल पहले क्या कर रहे थे, अभी 5 साल के बाद क्या कर रहे हैं, वो सक्सेस मेजर करना है.
आप किसी के साथ कनेक्ट करके नहीं कि ये सक्सेसफुल है, हम साथ में पढ़ रहे थे, अभी वो इतनी आगे बढ़ गई है, वो कभी नहीं लाना। आपने प्रोग्रेस कितना किया, आपने किया है नहीं किया, आपने क्या नॉलेज गेन किया, वो देखना है। तो आपका पर्सनल स्टोरी अलग ही है, और आपको कहाँ पुश करना है, आपको वो अपना आप ही ग्रो होगा। What a wonderful advice. That's really nice. तो वो बहुत बार गलत करते हैं लोग, और कि ये कितना आगे हो गई। पेरेंट्स भी बोलते हैं, देखो तेरे साथ पढ़ रही थी, इतना आगे पढ़ गई और तुम नहीं कुछ। लेकिन वो गलत है। और सबको क्या एटमॉस्फेयर मिला, क्या ये है, उसका पर्सनल एबिलिटी क्या है, वो सब देखना, उसका लाइकिंग क्या है। Cool. Thank you so much. That Thank was you. a very nice advice. And firstly and lastly, actually, de-stress. Then you're cool. Yeah, scribble. स्टेबल, हाँ, सबको करना है There's ना। a- Validated it, and daily is very necessary. Yeah, yeah. There's something. इसमें करने के टाइम में प्रेशर नहीं लाना, मतलब आपको थोड़ा एंजॉय करना, जो भी बनेगा। So there's a little something Oh. for you. Thank you very much for coming. थैंक यू। This was really nice. Really, Session. for me also, like this was a really good experience to see। और मुझे सरप्राइज हुआ कि आपने पहले एक किया, Yeah. मतलब ये दोनों सेपरेट हुआ है, इसको Right. देख के नहीं हुआ। Right, right. तो वो एंड somehow it matches, so सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे जो प्ले कर रहा है रोल, वो एकदम दिखता है। Thank you so much. Thank you. Thank Thank you, you. everyone. Thank you. Let's do a group picture before we leave.